ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے سرخیاں۔ عالمی سطح پر بھارت کی حیثیت ایک مضبوط معیشت اور مسئلے مسائل کو حل کرنے والی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر رواں برس جموں کشمیر میں امن و امان کے حوالے سے گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں کافی بہتر رہا۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ سال نو کا استقبال کرنے کے لیے دنیا بھر میں لوگ تیار۔ وادی کے سیاحتی مقامات پر بھی کافی چہل پہل اور گہما گہمی، اور رواں مالی سال کی چوتھی سماہی کے لیے چھوٹی بچت کی مختلف سکیموں پر شرح سود میں اضافے کا مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کو عالمی سطح پر ایک مضبوط معیشت اور مسئلے مسائل کو حل کرنے والے ملک کے طور دیکھا جا رہا ہے۔ کل سائپرس لانکا میں بھارتی شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وہ غیر ملکی پالیسی اور سفارتکاری میں پختہ یقین رکھتے ہیں اور بنیادی معاملات پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بالواسطہ طور پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو گفتگو کے ٹیبل پر لانے کی خاطر مجبور کرنے کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار کے طور استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر ایک کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے، لیکن اچھی ہمسائیگی کا مقصد ہیلے بہانے اور دہشت گردی کو جائز ٹھہرانا نہیں ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت حقیقی کنٹرول لائن میں یک طرفہ تبدیلی کی کسی بھی کوشش سے اتفاق نہیں کرے گا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ سال 2022 جموں کشمیر میں امن و امان کے حوالے سے گزشتہ 4 برسوں کے مقابلے میں کافی بہتر رہا۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ رواں برس جموں کشمیر میں ملیٹنسی مخالف کارروائیوں کے دوران 56 غیر ملکیوں سمیت 186 ملیٹنٹ مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مارے گئے ملیٹنٹوں میں سے بیشتر کا تعلق جیش محمد اور لشکر طیبہ سے تھا۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نے کہا کہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو بھی واپس قومی دائرے میں لایا گیا جن کو سخت غیر عناصر نے گمراہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی میں اس وقت سرگرم مقامی اور غیر مقامی ملیٹنٹوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس 188 AK-47 رائفلیں بھی برآمد کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پار سے ڈرونز کا استعمال کر کے جموں کشمیر میں منشیات بھیجنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سارے کامیاب آپریشن ہوئے اور ان آپریشنز کے چلتے 186 دہشت گرد، جس میں 56 فورن ٹیررسٹ ہیں، یعنی کہ پاکستان سے آئے ہوئے پاکستان کے رہنے والے دہشت گرد ہیں، جو لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ساتھ وابستہ رہے، ان کا بھی صفایا ہوا۔ اس پورے سال کے دوران جو سرحد پار سے سازشیں ہوتی رہتی ہیں کہ جہاں کا لوکل یوتھ ان کو مسلیڈ کر کے ورگلا کر کے تشدد کے راستے پر چلایا جائے، اس کی گنتی بھی پچھلے سالوں سے سب سے کم رہی ہے، اور یہ گنتی صرف اور صرف 100 تک رہی، جس میں سے 18 ہی لوگ بچے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ اسی سال کے دوران آپریشنز کے اندر جہاں مارے گئے، جہاں پکڑے گئے، میجورٹی ان میں سے مارے گئے۔ اور بہت سارے نوجوان ساتھی جو تھوڑا سا ریڈیکلائزیشن کے ماحول میں آگے بڑھ چکے تھے، ان کو واپس لانا اور ماں باپ کے ساتھ ان کو ملانا۔ ناظرین، خبریں ابھی اور بھی ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ لڑکو آؤ، چلو مشق کرو۔ ارے رک یار، میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط داخلے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بینک کو شکایت کرنا۔ بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، پر وہ گوگلی پر گوگلی ڈالے جا رہا ہے۔ تو آر بی آئی کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو۔ میں سمجھاتا ہوں، جیسے کرکٹ میں تیسرا امپائر، ویسے ہی آر بی آئی کا بینکنگ اومبڈسمین۔ آر بی آئی کہتا ہے اگر بینک اپنی شکایت کو 1 مہینے میں نہیں سلجھاتا تو آپ آر بی آئی کے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر آن لائن شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ آر بی آئی کا آسان طریقہ ہے آپ کی شکایت سلجھانے کا، اور وہ بھی مفت۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس طاہر ابستر نے کہا ہے کہ عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی میں لوک عدالتوں کا اہم رول ہے۔ موصوف نے آج جموں میں موبائل لوک عدالت وین کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوک عدالتوں کو منعقد کرنے اور انصاف کی بروقت فراہمی میں یہ وین اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ آج اس وین کو گاندھی نگر ستواری چوک اور ڈگیانہ جموں میں رکھا گیا تھا اور مختلف معاملات کے نپٹانے کے لیے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی جموں نے 2 بینچ قائم کیے تھے۔ اس دوران 116 معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹائے گئے۔
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के चीफ जस्टिस को एक मकतूब लिखा है जिसमें मौसूफा ने मुल्क बिलखसूस जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मकतूब में निचली दर्जे की अदालतों की तरफ से जमानती दरख्वास्तों के निपटाने के हवाले से चीफ जस्टिस के हालिया इजहार ख्याल का तज़किरा भी किया है। उन्होंने अपने मकतूब में लिखा है कि कौमी सिक्योरिटी और मुल्की मफाद के नाम पर साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत सख्त गिर पॉलिसी अपना रही है। मौसूफा ने कहा है कि उन्हें मुल्क की अदालतों पर काफी भरोसा है और उम्मीद जाहिर की है कि चीफ जस्टिस की जाती मुदाखलत से जम्मू कश्मीर के लोगों का इज्जत वकार बहाल हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा है कि रिवायती सियासी जमाअतों के बरकिस अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहती है। आज गांदरबल में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी खित्ते अर्ज को खुशहाल बनाने के लिए पुरअमन माहौल अव्वलीन जरूरत है। कन्वेंशन से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सियासी लीडर शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल के तुलमुला इलाके के आग मुतासरीन की फौरी तौर इमदाद करने की इंतजामिया से अपील की है। मौसूफ ने जाए हादसा का आज खुद दौरा करके आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आग मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुतासरीन को भरपूर इमदाद मिले जिससे उनकी बाज आबादकारी मुमकिन हो सके। शेख अशफाक जब्बार ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के साथ भी मुतासरीन की रिलीफ और बाज आबादकारी के हवाले से बात की। फाउंडेशन प्रोग्राम इर्तिका 2022 की इख्तितामी तकरीब आज ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर में मुनक्किद हुई। तकरीब में J&K खादियन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, दीगर तदरीसी और गैर तदरीसी अफसरान और तलबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने कहा कि एक ऐसा नक्शेरा इख्तियार करने की जरूरत है ताकि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले नए तलबा इस यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल के सफीरों का रोल अदा कर सकें। उन्होंने यूनिवर्सिटी में तलबा के हौसले को बनाए रखने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम करने के लिए वाइस चांसलर और दीगर मुतल्लिका अफसरान के रोल की सताइश की। इस मौके पर वाइस चांसलर और दीगर शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया। कठुआ जिले के बनी इलाके में आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आज सुबह सवेरे एक छोटी गाड़ी बनी बसूली सड़क पर मैगरा के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही 3 अफराद बिलावर का रहने वाला अजय और डोडा से ताल्लुक रखने वाले मोहनलाल और काकूराम की मौत वाक़ा हुई, जबकि राजेश कुमार नामी एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सालिनों के इस्तकबाल में दुनिया भर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। यही वजह है कि लोग पूरे जोश के साथ आने वाले साल 2023 की तैयारियों में पूरी तरह मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 बरसों के दौरान लोग नए साल का इस्तकबाल पूरे जोश खरोश के साथ नहीं कर सके, लेकिन अब चूंकि कोविड वबा लगभग खत्म हो चुकी है और पाबंदियां भी हटा दी गई हैं, इसलिए लोग नए साल का पूरे जोश खरोश से इस्तकबाल करना चाहते हैं। साल 2022 का आज आखिरी दिन है। ये साल कई यादें छोड़कर जा रहा है। इस बरस के दौरान मुल्क ने तकरीबन सभी शोबों में अहम कामयाबियां हासिल की और आवाम की फलाह बहबूद और तर्ज हयात को बेहतर बनाने के लिए कई अहम इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। आने वाले साल में भी यही उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क तमाम शोबों और हर महाज पर कामयाबी के साथ पेशरफ्त करेगा और आम लोगों, बिलखसूस पसमानदा और मुतवस्तित तबकों से वाबस्ता लोगों के हालात जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मजीद सभी दरकार इक़दाम किए जाएंगे। सालिनों के आमद के मौके पर आईजी बीएसएफ फ्रंटियर अशोक यादव ने आज गुरेज वादी में एलओसी का दौरा करके अगली चौकियों पर तैनात बीएसएफ एहलकारों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने फोर्सेज एहलकारों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और इंतहाई कठिन मौसमियाती सूरत-ए-हाल में भी मुल्क की सालमियत बनाए रखने के लिए उनके रोल की सताइश की। नए साल के मौके पर वादी के सयाहती मकामात पर भी काफी गहमा गहमी और रौनक पाई जा रही है। इस मौके पर अच्छी खासी तादाद में सयाह गुलमर्ग, पहलगाम और वादी के दीगर सयाहती मकामात पर मौजूद हैं। पहलगाम में मौजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि वो इस दिलफरेब सयाहती मकाम पर काफी खुशी और मसरत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए साल का इस्तकबाल करने के लिए इस सयाहती मकाम पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं।
आज 31 दिसंबर है, तो आज बहुत सारे क्लब में न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आज शाम को प्लान है कि न्यू ईयर में क्लब में जाके न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। न्यू ईयर का लास्ट डे है एंड कश्मीर से अच्छी जगह आई डोंट थिंक कोई है। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे, तो हम इसीलिए उनको अटेंड करने आए हैं। एंड आई थिंक अपने हेरिटेज और अपने कल्चर को अप्रिशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम 31 दिसंबर को ही आते हैं, ताकि 31 दिसंबर को हम यहाँ पार्टी करें, यहाँ एंजॉय करें और यहाँ का हेरिटेज देखें, यहाँ की खूबसूरती देखें, सीनिक ब्यूटी देखें। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए साल की आमद पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस मौके पर आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा है कि साल रवां अब कुछ ही देर में हमसे विदा हो रहा है और इस मौके पर हमारी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि आने वाले साल में हम अपनी कोशिशों को दोगुना करें, ताकि इक्तिसादी और समाजी तरक्की और मजमूई तौर पर समाज की कुल तरक्की के लिए जो अमल शुरू किया गया है उसकी रफ्तार आने वाले साल में दोगुना हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल में सभी लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जेडीयू सदर जीएम शाहीन समेत कई दीगर सियासी लीडरान ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 266 नए मामलात सामने आए हैं। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक इसी वक्फे के दौरान 179 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में इस तरह के मरीजों की सेहतयाबी की शरह सरदस्त 98.8% है। वजारत के मुताबिक मुल्क में सरदस्त 3653 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। पुणे की एक रजाकार तंजीम ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन ने श्रीनगर में आज सूफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, फाउंडेशन के कौमी सदर डॉक्टर आनंद और फाउंडेशन के जम्मू कश्मीर सदर डॉक्टर फिरदौस बाबा भी शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर सूफीज्म की रिवायात से मालामाल है। आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर सूफी विरासत है और वो बार बार यहां आना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक ख्वाब है कि कश्मीरी नौजवान आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर ने एक रजाकार तंजीम के इश्तिराक से आज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में सब जज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर और बडगाम फौजिया पाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस दौरान कॉलेज का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला और तलबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। खुराक सिविल सप्लाईज और अमली सार्फिन महकमे के एनफोर्समेंट सुकाड ने श्रीनगर में मार्केट चेकिंग के दौरान 25 गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानों को सरबेमोहर कर दिया है। जबकि इस दौरान कानून की खिलाफवर्जी करने पर 16 दुकानदारों से 30,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वाज़ा रहे महकमे ने रवां महीने के दौरान 260 दुकानों को मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफवर्जी की पादाश में सरबेमोहर कर दिया है, जबकि तकरीबन 9.5 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया। मरकजी हुकूमत ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली मौजूदा माली साल की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों पर शरही सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना के मुताबिक शहरियों के लिए बचत स्कीम पर मौजूदा शरह 7.6% को बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। माहाना आमदनी अकाउंट सेविंग की शरही सूद को भी 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। मौसम बाकी मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।